Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover crash course on art and culture. Before we start, here's a small announcement for all of you. Do you have a long term vision to achieve success? An Academy brings you new batches starting from 19th May 2021 to aid your exam preparation and help you with your journey. Use referral code ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe. Here is the list of batches that we are launching on Unacademy Plus for all of you. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual Hindi and English. Do not miss this opportunity. Enroll now. Today we will discuss about architecture. In that we will discuss Harappan temple architecture and cave architecture. This is in part 1 of architecture. We will continue in further lectures also about architecture. So let us begin with this lecture. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर. ये एक आर्ट या फिर एक प्रैक्टिस होती है डिजाइनिंग की या फिर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. मीन्स दिस इज एन आर्ट और अ प्रैक्टिस दैट includes designing as well as constructing buildings. So it is classified into different forms. Like in ancient India, it is classified into Harappan art, modern art, post-modern art and Gupta age art and South Indian art. Now we will discuss about the Harappan art and architecture. As we know, Indus Valley civilization, it is also known as Bronze Age civilization. इसे Bronze Age civilization भी कहा जाता है. So where it is located? It is located in the northwestern region of South Asia. So it lasted from 3500 BC to 1300 BC. So when it matured in the 3600 BC to 1900 BC. So Harappa and Mohenjo-daro. Okay, so these were the two major sites of the Indus Valley civilization. So what are the examples? It is an example of urban civic planning. So if a UPSC asks the question, what are the two urban civic planning? So you have to take on Harappa and Mohenjo-daro. So it indicates the planning and engineering skills, means how well they plan their architecture. This is the best example of art and architecture. You can see the image also. Now the first Indus Valley civilization is about Rakhigarhi. Okay, so it is the largest Indus Valley civilization site. If a UPSC asks the question which is the largest Indus Valley civilization site, so when in the option it is in Rakhigarhi, so you have to mark on this. So where it is located? In the village of Hisar, which is in Haryana. So when did it mature? It matured in the 2600 to 1900 BC. Okay, so Global Heritage Fund, this organization Global Heritage Fund, इसने डिक्लेयर किया राखीगढ़ी को वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट इन एशिया. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या मिला था? ज्वेलरी में से बैंगल्स मिले थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले थे जो कि टेराकोटा से बने हुए हैं, और कॉन्शल्स बने थे, और कुछ गोल्ड आइटम्स भी इस साइड पे मिले थे. नाउ नेक्स्ट इज धोलावीरा. It is also known as Kotara Timba. If in UPSC asks in question that which site is known as Kotara Timba, then you have to mark on Dholavira. So its location is Bachahu Taluka of Kutch district in Gujarat. Okay, so it is an fifth largest site among 8 major Harappan sites. मतलब ये 8 जो हड़प्पन साइट्स हैं उनमें से ये 5th लार्जेस्ट साइट है. ओके, अब ये लोकेट कहाँ करती है? खादर बेल्ट आइलैंड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो धोलावीरा से एसोसिएटेड है, देन यू हैव टू टेक ऑन कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वहां पे क्या क्या पाया गया, व्हाट वाज फाउंड, सो वन सीटेड फिगर मेल मेड ऑफ स्टोन, वहां पे एक सीटेड फिगर जो मेल का स्टोन से बना हुआ था वो मिला। ओके जैसे पेंटेड इंडस कैसे कैसे थे, जैसे ब्लैक ऑन रेड वेयर पोएट्री थी, स्क्वायर स्टेम सीज थे, सीज जो थी वो इंडस स्क्रिप्ट के बिना थी, विदाउट इंडस स्क्रिप्ट। अब कुछ मेजर हड़प्पन साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा, कलिबंगन, मोहनजोदारो, रूपनगर, गनेरियावाला, लोथल and Rakhigarhi. Okay, so these are some of the major Harappan sites. Now we will discuss that how was the structure in Harappan civilization. Harappan civilization में architecture कैसा था? So जो town planning थी Harappan civilization की वो rectangular grid pattern था. So you can see here in the image that how was the Harappan site was built. Okay, it was in rectangular grid pattern. अब roads कैसे वहां पे रैन हो रही थी या फिर दौड़ रही थी, जैसे नॉर्थ साउथ रोड्स थी, ईस्ट वेस्ट रोड्स थी, जैसे राइट एंगल, सो इट कट ईच अदर एट राइट एंगल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग विच इज फाउंड इन द एग्जीबिशन साइट। 3 टाइप्स की बिल्डिंग्स मिली एग्जीबिशन साइट पे, जैसे ड्वेलिंग हाउसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बाथ्स थे, और बर्न मड ब्रिक्स, मतलब जला हुआ जो मड का ब्रिक होता है वो यूज होता था। ओके सो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो यूज होता था वो जिप्सम मोर्टर था। ओके अब जो आर्किटेक्चर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी, अपर सिटाडेल एंड लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। ओके जो अपर सिटाडेल था वो वेस्टर्न पार्ट में यूज होता था। ओके जैसे कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन, जो कि जैसे ग्रैंडरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल्स एंड कोर्टयार्ड्स। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर उसमें नहीं थे, जैसे टेम्पल्स या पैलेसेस। ओके सो जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था वो स्मॉल होते थे, जैसे 1 रूम हाउसेज होते थे, जिसे जो वर्किंग पीपल थे क्वार्टर की तरह यूज करते थे, दे यूज एज अ क्वार्टर बाय वर्किंग पीपल। Now the next topic is temple architecture. We will discuss about that whole temple architecture. So temple को अलग अलग नेम में भी बुलाया जाता है, like synonyms of temple also is there, like देवालय, देवकुला मंदिर, कोविल, देओल, देवस्थानम, प्रसाद. So there are 2 broad orders of temple in the country which are known as, साउथ में temples को क्या कहा जाता है, द्राविड़ा, और नॉर्थ में नागरा. ओके सो दीज आर द 2 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर फॉर टेम्पल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स. फीचर्स क्या थे इंडियन टेम्पल्स के, जैसे रॉक कट केव टेम्पल से स्टार्टिंग हुई टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स. एक रॉक कट केव टेम्पल से लेके स्ट्रक्चर टेम्पल तक टेम्पल्स की शुरुआत हुई है. ओके पहला टेम्पल जैसे गर्भ Griha. Okay, these are the types that how are the temples are defined. First is Garbhagriha, that is known as Scantrum. So it means warm house. So जो इसका केव होता था वो स्कैंटम शेप में होता था, जो कि अर्लिएस्ट टेम्पल्स होते थे स्मॉल क्यूबिक स्ट्रक्चर के होते थे, बट एक सिंगल एंट्रेंस रहता था. और धीरे धीरे जैसे टेम्पल ग्रो होता गया, धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज होते गए, वैसे वैसे इसके चैम्बर्स में भी लार्ज होते गए. अब आता है जो मेन आइकन क्या होता है, मेन डीटी क्या है, विच इज मेड द हाउस दैट मेन आइकन मेन डीटी टू फोकस ऑन ऑफ मच रिचुअल अटेंशन. मतलब जो मेन फोकस होता था वो रिचुअल अटेंशन पे होता था. ना नेक्स्ट इज मंडपा. मंडपा क्या होता है, एंट्रेंस होता है टेम्पल का. ये पोर्टिको या फिर कोलनाड, ओके विच इज अ सीरीज ऑफ कॉलम्स प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब एक कॉलम्स की सीरीज को
रेगुलर इंटरवल पे रखना। मतलब ये एक हॉल टाइप का होता है जो इनकॉर्पोरेट करता है स्पेस को, मतलब एक काफी बड़ी स्पेस होती है जहां पे लार्ज नंबर पे वर्शिपर्स या फिर जो भक्त होते हैं वो प्रे कर सकते हैं। अब आता है सम टेम्पल्स हैव मल्टीपल मंडपास, मतलब कई टेम्पल्स में आपने देखे होंगे दो द्वार होते हैं या फिर दो एंट्रेंस होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है अर्ध मंडपा, मंडपा, महामंडपा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन टेम्पल इज शिखारा और विमाना। ये जो होते थे दे आर लाइक स्पायर, माउंटेन लाइक स्पायर के शेप में होते थे, जैसे ऑफ अ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। और ये जो शिकारा कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, दे आर फाउंड इन कर्विंग शेप इन अ नॉर्थ इंडियन टेम्पल। ओके, ये शिकारा जो होते हैं वो कर्विंग शेप में होते हैं और कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल में। और जो विमाना होते हैं वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और साउथ इंडियन में मिलते हैं। ओके, नाउ कम वाहना। सो इट इज अ माउंट और अ व्हीकल ऑफ द टेम्पल, मतलब एक माउंट या फिर व्हीकल जैसे टेम्पल का होता है। ओके, उसमें होते हैं सो स्टैंडर्ड पिलर होता है और ध्वज, जो कि प्लेस्ड कहां पे होता है, एक्चुअली होता है प्लेस्ड बिफोर द स्कैंटम। सो ये स्कैंटम से पहले प्लेस्ड होता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज अमालका। सो ये स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक क्राउनिंग की शेप में होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जैसे शिकारा। ओके, द नेक्स्ट इज कलशा। ओके, कलाशा। सो ये एक वाइड माउंटेड पॉट की तरह होता है या फिर ऑर्नामेंटल पॉट डिजाइन जो होती है उसकी तरह होता है, और डेकोरेटिंग द शिकारा इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की तरह होता है। सो नेक्स्ट इज अंतराला, दैट इज वेस्टिब्यूल। सो एक ये ट्रांजिशन एरिया होता है किसके किसके बीच में, गर्भगृह और टेम्पल के मेन हॉल के बीच में, मेन हॉल दैट इज मंडपा। नेक्स्ट इज जगती। ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहां पे लोग बैठते या फिर सिटिंग एंड प्रेइंग, वो एक कॉमन प्लेस होती है जहां पे लोग बैठते हैं और पूजा करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपने देखा होगा। अब आप देख सकते हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन टेम्पल्स के कुछ इमेजेस ऑल्सो। देख सकते हैं कैसे गर्भगृह कहाँ पे है, अमालका कहाँ है, कलशा कहाँ है, और अंतराला कहाँ है, मंडपा कहाँ है। ओके, शिखरा कहाँ है, you can see this also, you can see all this in image। अब आता है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। जो ये एंटायर टेम्पल होता है वो स्टोन प्लेटफॉर्म पे होता है। ओके, सो इसमें कोई बाउंड्री वॉल्स या फिर गेटवेज नहीं होते हैं, बट साउथ इंडियन टेम्पल्स में बाउंड्री वॉल्स होते हैं। सो 3 मेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं नागरा स्टाइल के, जैसे शिखारा, कल्विनियर टावर जिसे कहते हैं, गर्भगृह स्कैंटम स्क्वेंट्रोम एंड मंडपा दैट इज एंट्रेंस हॉल्स। ये इसके 3 डिफरेंट फीचर्स हैं। अब जो पहले के टेम्पल्स होते थे उसमें 1 टावर होता था, जैसे एक शिकारा होता था। अब जो लेटर टेम्पल्स हैं उसमें कई शिकारास हो गए। ओके, अब गर्भगृह जो होता है वो हमेशा कहाँ पे लोकेटेड होता है, डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। जो कहाँ पे गर्भगृह होता है, जो टॉलेस्ट टावर होता है वहीं पे लोकेटेड होता है। सो इसके एग्जांपल क्या है, दश अवतारा टेम्पल जो कि देवगढ़ में है, विश्वनाथा टेम्पल खजुराहो में है, लक्ष्मण टेम्पल दैट इज ऑल्सो इन खजुराहो, एंड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। अब नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। So UPSC also can ask where are the central Indian temples situation. Okay, so it can be Uttar Pradesh also, Madhya Pradesh also and Rajasthan. So you have to tick on the appropriate answer. So it is made up of sandstone. So इसकी कई जो हैं वो ओल्डर सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल होता है। ओके, फ्रॉम द गुप्ता पीरियड विच इज इन मध्य प्रदेश। ये ओल्डर सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो कि कब से है, गुप्ता पीरियड से है और मध्य प्रदेश में है। इसके ग्रोइंग एलिमेंट क्या है, अमलक एंड कलश, और इसके 4 पिलर हैं जो कि सपोर्ट करते हैं स्मॉल मंडपा को। जैसे जो कैसे दिखाई देते हैं, सिंपल स्क्वायर पोर्च लाइक एक्सटेंशन, जैसे इक्वली रूम जो कि सर्व करते हैं गर्भगृह को।
अब आता है उदयगिरी, जो कि आउटस्कर्ट है विदिशा का, जो कि पार्ट है लार्जर हिंदू कॉम्प्लेक्स ऑफ केव श्राइन्स। ओके, सो अदर वन टेम्पल कौन सा है, जैसे सांची का स्तूपा टेम्पल। ओके, अब आता है दस अवतारा टेम्पल। ओके, यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु। ये भी नागरा स्टाइल टेम्पल है और कब बिल्ड हुआ था, इन अर्ली 6th सेंचुरी कॉमन एरा, दैट इज सीई। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है लेट पीरियड टाइप ऑफ टेम्पल का। ओके, और जो इसका आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल का है, पंचयातना। ओके, सो ये कहाँ पे बिल्ट होता है, जो मेन श्राइन होता है इसका, जो बिल्ट होता है रेक्टेंगुलर प्लिंथ, जो कि 4 स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन्स पे होता है, जो कि हर एक 4 कॉर्नर पे सिचुएटेड है। और इसमें टोटल नंबर जो श्राइन्स होते हैं वो 5 होते हैं। सो इसे तभी पंचयातना कहा गया है, मतलब 5 श्राइन्स। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज पंचयातना। नाउ नेक्स्ट इज खुजराहो टेम्पल, इज इट इज इन मध्य प्रदेश। ये भी नागरा स्टाइल टेम्पल है और ये किस लिए काफी नोन है, काफी फेमस है, फॉर एक्सटेंटिव एरोटिक स्कल्पचर। यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो कैसे एरोटिक स्ट्रक्चर है। ओके, सो जो एरोटिक एक्सप्रेशन होता है वो उसको इक्वल इंपॉर्टेंस मिली है इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि एक स्पिरिचुअल परस्यूट है, स्पिरिचुअल फॉर्म में यूज होता है, विच इज सीन एज अ लार्जर कॉस्मिक होल। अब आता है लक्ष्मणा टेम्पल ऑफ खुजराहो। ओके, यू कैन सी दिस ऑल्सो इन द इमेज। ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, किस डीटी को, दैट इज लॉर्ड विष्णु। ओके, सो ये कब बिल्ट हुआ था, 954 बाय विच किंग, चंदेला किंग ऑफ ढांगा। ये भी नागरा स्टाइल टेम्पल है, जो कि कहाँ पे प्लेस है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म which is assisted by stairs. You can see in the image that how the stairs are assisted. स्टेयर्स भी हैं और एक हाई प्लेटफॉर्म भी आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। Now you can see Kandariya Mahadev temple at Khajuraho. This is an epitome temple architecture. So it is in central India. ये कौन सा डिटी को डेडिकेट करता है, that is Lord Shiva. You can see the image of this temple also. Now we will discuss about West Indian temples. So it is a northwestern parts of India. So it includes Gujarat, Rajasthan, Western Madhya Pradesh. So these temples are very large in numbers. So stone is used to build the temples, which are different in colors and types. So sandstone, which is used in most common thing. Okay, तो सैंड स्टोन जो होता है वो काफी कॉमनली यूज होता है यहाँ पे। सो जो ये ग्रे होता है, अ ग्रे टू ब्लैक बेसाल्ट कैन बी सीन। सो इन विच सेंचुरी, 10th to 12th century temple sculptures. So Jain temples in Mount Abu, that is in 10th to 12th century built. These are most exuberant famed is the manipulatable soft white marble. जो ये सॉफ्ट वाइट मार्बल यूज हुआ था। 15th सेंचुरी जो टेम्पल है रनकपुर का, जो डेडिकेट है फर्स्ट जैन तीरंदकारा टेम्पल इसको कहा गया है। ओके, सो इट कैन बी यूपीएससी क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट जैन तीरंदकारा टेम्पल, दैट इज इन रनकपुर। ओके, सो नाउ रुषा देव इज ऑल्सो known as Adinath. Now come the Sun temple. This is in Modhera, Gujarat. It is built by Raja Bhimdev I. He was from Solanki dynasty in 1026. Okay, who built it? Raja Bhimdev I, Solanki dynasty. Okay, so it is in rectangular stepped tank. You can see in the picture also. This is called the Surya Kund. जो रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक है उसे सूर्य कुंड भी कहा गया है। ओके, सो इट इज द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इन इंडिया। सो यूपीएससी क्वेश्चन कैन बी, विच इज द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इन इंडिया, विच टेम्पल हैज द ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक इन इंडिया, दैट इज सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, दैट इज इन गुजरात। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईस्टर्न इंडिया टेम्पल।
These are found in Northeast Bengal and Odisha. So terracotta is the main medium of construction. जो terracotta है उसको construction के लिए यूज किया जाता है, ये मेन मीडियम है. ओके सो जो मोल्डिंग प्लेक्स है वो किसको डेपिक्ट करते हैं? बुद्धिस्ट एंड हिंदू डिटीज को, जो कि बंगाल में अंटिल 7th सेंचुरी से है. ओके सो कामाख्या टेम्पल विच यू कैन सी इन द इमेज, कामाख्या टेम्पल जो कि असम में है, 17th सेंचुरी में बिल्ट हुआ, जो कि शक्ति पीठ कहा जाता है. ये किस गॉडेस को डेडिकेट है? गॉडेस कामाख्या. नाउ ईस्टर्न टेम्पल्स इन ओडिशा. सो द मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ ओडिशा टेम्पल, जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं ओडिशा टेम्पल्स के, वो 3 ऑर्डर्स में दिए गए हैं. पहला रेखापीडिया, जो कि टॉल स्ट्रेट बिल्डिंग होती है, जैसे लाइक शिकारा कवरिंग द गर्भगृह, जो आप इमेज में देख सकते हैं. यू कैन सी इन द इमेज, जैसे रेखापीडिया कैसा है, एक टॉल है, स्ट्रेट बिल्डिंग दिख रही होगी, जैसे शिकारा होता है. ओके वैसे ही ये पूरी इसको गर्भगृह को, जो जहां पे लोग बैठते हैं वहां पे, उसको कवर कर रहा है. ओके नाउ कम द सेकेंड इज पिधा ड्यूल. सो ये इट इज द मंडपा, अ स्क्वायर बिल्डिंग वेयर द वर्शिपर्स आर प्रेजेंट एंड डांसिंग टेक प्लेस. जो तो पिहा देओल है उसे मंडपा भी कहा जाता है, जो कि एक स्क्वायर बिल्डिंग है जहां पे वर्शिपर्स मतलब जो भक्त होते हैं वो वहां पे रहते हैं, वर्शिपर्स आर प्रेजेंट देयर, और जो डांसिंग है वो वहां पे होती है. ओके द थर्ड पार्ट इज खाकरा. ओके ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जो कि ट्रूनिकेटेड पिरामिड में है और शेप्ड रूफ होता है. सो मेन टेम्पल साइट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन एशियन कलिंगा, दैट इज इन पुरी डिस्ट्रिक्ट, विच इंक्लूड भुवनेश्वर और एशियन त्रिभुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क. Now you can see the कलिंगा स्ट्रक्चर टेम्पल. ओके आप इमेज में देख सकते हैं रेखा द्वेला कहाँ पे है, गर्भगृह कहाँ है, और पीढ़ा द्वेला कहाँ है, और खाकरा द्वेला, और ये जो है वो देख सकते हैं एक्सिस वेस्ट ईस्ट में है. ओके यू कैन सी द इमेज ऑल्सो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कलिंगा आर्किटेक्चर. सो जो शिकारा होता है उसको द्योल कहते हैं उड़ीसा में. शिकारा इज नोन एज द्यूल इन उड़ीसा. सो ये एक वर्टिकल होता है और ऑलमोस्ट अंटिल द टॉप एंड इज सडनली कर्व शार्पली इनवर्ड्स. आप इमेज में देख रहे होंगे कैसे कर्व है शार्पली इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ. ओके सो जो द्योल्स होते हैं वो यूजली आर यूजुअल बाय मंडपास विच इज कॉल्ड जगमोहना इन उड़ीसा. सो जो उड़ीसा टेम्पल्स होते हैं उसमें बाउंड्री वॉल्स होती है. उड़ीसा टेम्पल्स हैव बाउंड्री वॉल्स. नाउ यू कैन सी द कोणार्क टेम्पल. ओके ये कब का है? लाइक द इन द रेन ऑफ सूर्य और सन टेम्पल. सो इट इज बिल्ट इन स्टोन. ये स्टोन पे बिल्ट है. ओके स्टोन का बना हुआ है जो कि अराउंड 1240 का है. सो द सन टेम्पल जो है वो एक हाई बेस पे बना हुआ है. यू कैन सी इन द इमेज जो हाई बेस पे है. जो वॉल्स है वो कवर्ड है एक्सटेंसिव एंड डिटेल ऑर्नामेंट कार्विंग से. देख रहे होंगे आप कि ये ऑर्नामेंटल कार्विंग्स भी हैं उसमें. सो इसमें 12 पेयर्स हैं जो एनॉर्मस व्हील्स के हैं. व्हील्स भी आप देख सकते हैं इमेज में. और चैरियट व्हील्स ऑफ द सन गॉड ऑल्सो, जो कि ये जो व्हील्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? चैरियट व्हील्स ऑफ सन गॉड, भगवान सन को, मतलब गॉड सन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ओके सो ये इसमें 7 हॉर्सेस भी हैं. ओके और स्कल्पचर्ड हियर एट द एंट्रेंस स्टेयरकेस, जो एंट्रेंस स्टेयरकेस भी इसमें दिया गया है. अब आता है द्रविड़ा या फिर साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल. जो साउथ इंडियन है वो कब बिगन हुआ? पल्लवा रूलर महादेवरम 1 में. ओके सो ये जो पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्टाइलिक टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर, जो कि क्लासिफाइड है 4 ग्रुप्स में. ओके जैसे पहला है महिंद्रा ग्रुप. ओके जो महिंद्रा ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल स्ट्रक्चर है. ओके पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर इसमें डिफाइंड है फर्स्ट स्टेज पे. सो ये किस में बिल्ड अंडर हुआ था? किसके बिल्ड अंडर हुआ था? किसने बनाया था? महादेवरम. ओके इट इज एन रॉक टेम्पल.
नाउ कम्स द नरसिम्हा ग्रुप. ओके, ये जो है मंडपास इसमें डिवाइडेड किए गए हैं सेपरेट रथ उसमें. ओके, जो ये मंडपास है इस ग्रुप के वो डिफरेंट रथ में डिवाइड किए गए हैं. सो बिगेस्ट वन रथ कौन सा है? सबसे बड़ा रथ क्या है? धर्मराजा रथ. सबसे छोटा रथ कौन क्या कहा जाता है? द्रौपदी रथ. सो ये इसमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है. मींस जो सक्सेसर थे, सक्सेसर ऑफ द धर्मराजा रथ. ओके, अब आता है थर्ड ग्रुप इज राजसिम्हा ग्रुप. ये एक रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल है. ओके, जैसे एग्जांपल शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु. अब फोर्थ वन इज नंदीवरम ग्रुप. ये काफी स्मॉलर साइज में होता है. ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर किससे होता है? द्रविडियन स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर होता है. और ये डिक्लाइन हुआ पल्लवा डायनेस्टी में और टेम्पल आर्किटेक्चर न्यू स्टाइल में आया अंडर चोला किंगडम विच इज नोन एज द्रविडियन स्टाइल. ओके, जो द्रविडियन स्टाइल था वो चोला किंगडम के अंतर्गत में आया. और 3 स्टाइल्स इमर्ज हुई इसमें लेटर में, जैसे विसारा स्टाइल, लाइका स्टाइल एंड विजयनगरा स्टाइल. अब आता है चोला आर्ट विच इज इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. इसमें बाउंड्री वॉल्स काफी बड़ी होती है, हाई बाउंड्री वॉल्स, और जो फ्रंट वॉल होती है वो एंट्रेंस गेट वे होता है सेंटर में. ओके, फ्रंट वॉल के बीच का जो एंट्रेंस गेटवे होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, जिसे गोपुरा या गोपुरम कहते हैं. सो टेम्पल प्रेमिसेस जो होता है वो पंचयातन स्टाइल में है. ओके, मतलब पंचतंत्र. यू कैन से 5 वर्सेस. ओके, सो जो मेन टेम्पल टावर का जो शेप होता है उसे कहा जाता है विमाना. द शेप ऑफ द मेन टेम्पल इज नोन एज विमाना एंड शिकारा इन नागरा स्टाइल. सो विमाना इज लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड. जैसे नहीं आप स्टेयर्स में पिरामिड देखते हो, वैसा स्टेप पिरामिड होता है विमाना का. ओके, सो जो कर्विंग होती है शिखारा की नॉर्थ इंडिया में. सो द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल. इसमें द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल्स होते हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक पाया जाता है वहां पे. सो एग्जाम्पल क्या है? बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजोर तमिलनाडु which is built by Raja Raja I in 1011 AD. Now you can see the Chola art, that is of द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर. आप टेम्पल स्ट्रक्चर देख सकते हैं द्रविडियन स्टाइल का. गोपुरम है, मंडपा कहाँ है, शिकारा कैसे होता है, विमाना कहाँ पे. ओके, एंड गर्भगृह ऑल्सो यू कैन सी इन दिस इमेज. अब विसारा या फिर डिक्कैन जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसे कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा गया है. ओके, सो ये हाइब्रिडाइज स्टाइल में होता है जो कि डेक्कन रीजन में होता है. ओके, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें होते हैं? जैसे नगारा एंड द्रविड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल दोनों होती है इसमें. नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल भी होती है. ओके, अब इसमें सम एशियन टेक्स्ट हैं जैसे एज द विसारा स्टाइल, जिसमें हर टेम्पल्स में नहीं होता है. ओके, हर टेम्पल जो कि डिकैन आर द विसारा टेम्पल इन सब में नहीं होता है. सो जो विसारा स्टाइल जब कब पॉपुलर हुई? इन द मिड 7th सेंचुरी. इसके क्या फीचर्स हैं? एम्फेसिस ऑन विमाना एंड मंडपा. सो ओपन एम्बुलेटोरो पैसेज वे. ओके, 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज कौन सी इन्वॉल्व थी? चालुक्यास ऑफ बादामी एंड कल्याणी, राष्ट्रकूटास like example Kailashnath temple in Ellora, Hoysalia dynasty, that is temples at Halebid, that is in Vellore. अब हम बात करते हैं रावणफाड़ी केव, that is in Aihole, कर्नाटका. ओके, ये एग्जाम्पल है चालुक्य स्टाइल का, विच इज किस लिए नोन है? डिस्टिंक्ट स्कल्पचर स्टाइल के लिए फेमस है काफी. सो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर क्या है साइड का? दैट इज नटराजा, जो कि सराउंडेड है लास्ट डिपिक्शन ऑफ सप्तमित्रकास. ओके, जैसे 3 to शिवास लेफ्ट, मतलब जो सप्तमिकास है वो शिवास के लेफ्ट में है 3, और 4 जो है वो 4 मतलब टू हिज राइट.
ओके, 4 शिवा के राइट में है। अब आता है लड़खान टेम्पल एट एहोल कर्नाटका। ये भी सिचुएटेड कहाँ है? साउथ में। डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। ओके, सो एक ये ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है। ये कब बिल्ट हुआ? 5th सेंचुरी में बाय द किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ये इंस्पायर करता है वुडन रूफ टेम्पल्स को। ओके, यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। ये किस पर्सन के नाम पे है? लड़खान। ओके, जो कि टर्न हुआ टेम्पल में, जो पहले एक रेसिडेंस था फॉर अ शॉर्ट पीरियड। पहले ये एक रेसिडेंस था, ओके, बट आफ्टरवर्ड इट कन्वर्टेड इनटू टेम्पल। नाउ नेक्स्ट इज दुर्गा टेम्पल एट एहोल कर्नाटका। ये बिल्ड कब हुआ? 7th to 8th सेंचुरी। इसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? ड्राविटा विथ नागरा स्टाइल, विच इज कॉमन इन सर्टेन एरियाज ऑल्सो। ओके, सो एक यूनिक एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल है। कौन सी पीरियड का? चालुक्य पीरियड का। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केव आर्किटेक्चर। ये एक रॉक कट केव आर्किटेक्चर को इमर्ज करता है, काफी फेमस करता है। ओके, सो ये मॉडर्न पीरियड्स के वक्त का है। इट इज ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। सो दिस केव्स यूज्ड एज अ विहारास, दैट इज लिविंग क्वार्टर्स बाय जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो विहारास जो हैं इस पीरियड के, वो एक लिविंग क्वार्टर, विहारास मीन्स जैसे क्वार्टर्स होते हैं, वो किसके लिए यूज होते थे? जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। सो जो इसमें केव्स मार्क्ड हुई हैं बाय द हाईली पॉलिश फिनिशिंग होती है इसमें ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। एग्जाम्पल क्या है? बारबर केव एंड नगरजुनी केव। दिस इज इन बिहार। Now we have to discuss about post-modern art. So जैसे मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ 2nd सेंचुरी BC में, decline of modern empire in 2nd century BC, so small dynasties form हुई different parts of India में। small dynasties वो formed in different parts of India. Okay, like in north dynasties were Shunga, Kanwas, Kushanas and Shakas. In south, Satavahanas, Ikshukas and Abhiras and Vakatakas. Okay. Now we will discuss about rock cut caves. This is in the period of Mauryan. Okay. So two types की rock caves होती है. There are two types of rock caves developed. First is Chaitya. चैत्या में प्रेयर हॉल कहा जाता है, जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं। विहार मतलब जहाँ रेसिडेंशियल हॉल कहा जाता है। ओके, सो इट कैन बी यूपीएससी क्वेश्चन, व्हाट इज चैत्या? दैट इज प्रेयर हॉल। और इट कैन बी लाइक आस्क्ड इन दिस वे आल्सो, व्हाट इज प्रेयर हॉल नोन इन रॉक कट केव्स? सो यू हैव टू आंसर इन चैत्या। ओके, residential hall are known as vihar. What are vihars? Residential halls for the Buddhist and Jain monks developed during Mauryan Empire. विहारास लाइक जैसे रेसिडेंशियल हॉल होता था बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क के लिए। ओके, कब के पीरियड में? मॉडर्न एम्पायर के में। ओके, सो चैत्यास जो होते हैं वो क्वाड्रल एंगल चैम्बल्स होते हैं विथ फ्लैट रूफ्स। यू कैन सी इन द इमेज। सो ये किस लिए यूज होते हैं? इट इज यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल्स। एग्जाम्पल लाइक करले चैत्या हॉल, इट हैज 29 caves, 25 vihars and 4 chaitya. Second is Ajanta caves. Now in post-modern art like stupas, so these are big, larger and more decorative. यहाँ पे स्टोन यूज होता है, कोई वुड या ब्रिक का यूज नहीं होता है। यू कैन सी इन द इमेज कि स्टोन का यूज हुआ है। सो idea of torrents is introduced by Shunga dynasty. It can be your UPSC question that who gave the idea of torrents? That is Shunga dynasty, means a beautiful decorated gateways to the stupas. मतलब एक beautiful decorative मतलब सुंदर सा गेटवे होता है stupas के पास। You can see in the image. जो तोरांस होते हैं वो कार्ड किससे होते हैं? जैसे फिगर से, पैटर्न से, इनसे। सो ये एविडेंस किसके होते हैं? हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस के होते हैं। ये हेलेनिस्टिक को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एग्जांपल भारत स्तूपा विच इज इन
मध्य प्रदेश। नाउ नेक्स्ट इज गुप्ता एज, ये 4th सेंचुरी एडी में आया और ये काफी डोमिनेट किसको करता है, काफी मेन रिलीजन कौन सा है इसमें, हिंदुइज्म। सो गुप्ता एज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। गुप्ता एज में आर्किटेक्चर को काफी महत्वता, मतलब काफी इंपॉर्टेंस मिली, सो इसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ओके, सो इसमें जो लेस इन्फ्लुएंस, कम इंपॉर्टेंस किससे मिली, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को। ओके, सो गुप्ता रूलर्स जो थे काफी ब्राह्मिकल रूलर्स थे, सो इसमें हिंदुइज्म को काफी प्रमोट किया। सो दे एक्सेप्ट और टॉलरेंस फॉर ऑल अदर रिलीजन। सो 3 प्रिंसिपल डीटीज कौन कौन से वर्शिप होते थे, जैसे विष्णु इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, शिवा इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज शक्ति इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज केव्स, जो कि काफी कॉन्स्टेंट्स रहती हैं। ओके, इसमें मोरल पेंटिंग्स यूज होती है, कहाँ पे, वॉल्स ऑफ द caves में। ओके, which is the most important feature. Mural paintings is used on the walls of the cave. Like example, mural painting कहाँ कहाँ पे है, Ajanta cave and Ellora cave also. Okay, so you can see the image of the cave of Ajanta. Now the last cave is Udaygiri cave. It is built in 5th century AD. ये एक हिंदू स्कल्पचर है जो कि लोकेटेड कहाँ है, विदिशा, विच इज इन मध्य प्रदेश। सो ये चंद्रगुप्त 2 के पैटर्न्स का है। ओके, ये किस लिए फेमस है, न्यूमरस स्कल्पचर ऑन द हिल केव्स के लिए। सो जैसे स्कल्पचर वहारा और बोर इनकारनेशन जो कि विष्णु के लिए काफी नोटेबल थे। ये केव्स क्या डेडिकेट करते हैं, जैसे शिवा को, नरसिम्हा को, नरसिम्हा लाइक जैसे नहीं, आधा हाफ लॉयन और हाफ मैन। ओके, नरसिम्हा इज like Lord Vishnu only. Okay, Narayana resting Vishnu, Sakanda. Okay, so गुप्ता एज जो था वो उसने काफी डिक्लाइन देखा इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास। सो देयर इज वन एग्जांपल दैट इज धामिक स्तूपा जो कि सारनाथ वाराणसी में है। यू कैन सी द इमेज ऑल्सो ऑफ धामिक स्तूपा हियर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू।